Hello, good morning to all my dear students. Last time फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चालू किया था. इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट से हमने कुछ डेफिनेशंस लर्न की थी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, व्हाट डू यू मीन बाय सेल, किसने डिस्कवर किया, वो सब डिस्कस किया था, राइट? चलो, नाउ लेट वी गो इनसाइड द सेल. How many components of cell that we have to learn in this chapter? And if I talk about a single cell, it is made up of which type of material, what is inside the cell? Because last time we have discussed that division of labor is also seen within a single cell. A single cell has to perform so many different functions. And of course, unless and until division of labor is there, it won't be possible for a single cell to perform all specific functions. So when I talk about individual organ, it has to perform a specific type of function, and of course the cells are of that type. If I talk about cells of heart, if I talk about cells of kidney, they are totally different because they have to perform specific function. Fine. Now if I talk about a single cell, as it is consist of mainly plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These three different part we have to study in this chapter. Plasma membrane, what is plasma membrane, we'll discuss. Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Now plasma membrane is what outermost covering layer of the cell. If I talk about any single cell, the outermost boundary layer, that is called as a plasma membrane. We will go in detail very soon. Next, the inside the cell, the main part of the cell, I must have to say, that is nucleus. Fine. And the other part is of course a fluid part, that is cytoplasm. It is a fluid. Cytoplasm. Cyto means cell, plasm means fluid or liquid. तो सेल के अंदर जो लिक्विड है, और वही लिक्विड में बहुत सारी ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. वी हैव टू ऑल्सो स्टडी ईच एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स. Endoplasmic reticulum, Golgi body, so and so different kind of organelles, but all the organelles are present in the cytoplasm. So as far as parts of cells are concerned, now you are very clear. Number 1 is plasma membrane, number 2 is nucleus, and number 3 is cytoplasm. Let's start with first today plasma membrane. Now as I just mentioned before a few minutes, that it is considered as a outermost covering layer. Outermost covering layer of cell that separates the content of cell. Content of cell means what? What is inside the cell from its external environment. If you talk about any cell, the boundary of that cell is called as a plasma membrane, as it is membrane. So बहुत बड़ी शॉर्ट नोट पूछते हैं एग्जाम में, what do you mean by plasma membrane, what is plasma membrane is made up of, and what about the functions of plasma membrane, वो आज डिस्कस करने वाले हैं. So plasma membrane is nothing but, my dear students, it is outermost covering layer of the cell which separates the content of cell from its external environment. Now a main function, if I say plasma membrane, that is very very important. It allows or permit entry and exit of some material in and out of the cell. Frontline function, अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अ बाउंड्री, तो डेफिनेटली इट अलाउज और परमिट एंट्री and exit of some substance, some material in and out of the cell. For an example, if I talk about single cell, so it requires oxygen,
and at the end of so many metabolic process it creates waste product. So waste product has to be come out of the cell, and at the same time fresh oxygen can also be involved inside the cell. If I say it has to be entered inside the cell so that cell becomes live. तो दो ही चीज के बारे में मैं आज डिस्कस करूं कि फॉर एन एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट गैसेस, तो फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज सब सेल को चाहिए ऑक्सीजन। और सेल में और पूरी बॉडी में जो प्रोसेस होती है उससे क्या निकलती है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को सेल की अंदर ले जाना है। वो वाला काम कौन करते हैं? डेफिनेटली इट इज डन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो अलाउ करते हैं, वो परमिट करते हैं, चलो ऑक्सीजन तुम अंदर आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देते हैं, ताकि सेल की इंटीग्रिटी जो है, सेल की जो काम करने की क्षमता है, उसमें कोई बदलाव ना आए, राइट? और सेल बिकम्स लाइव। ओके, बट if you talk about the last line of this paragraph, this is very very crucial, very important. I say it is a selectively permeable membrane, and when I say selectively permeable membrane, it means what? अब मैं actual function define करने जा रहा हूँ कि plasma membrane it is a selective permeable membrane. Selective permeable membrane it means what? वो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देते हैं भाई, वो देखते हैं क्या ये सेल के लिए जरूरी है, नहीं है तो इट वॉन्ट परमिट, इट वॉन्ट अलाउस। फाइन, अगर सेल में ऑक्सीजन है सो देयर इज अ नो नीड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गो इनसाइड द सेल, तो वो जो मेम्ब्रेन है वो मना कर देते। आई मीन टू इट इज अ बॉर्डर। फाइन, नहीं जाना है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि ये लॉकडाउन में सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ था तब मोदी ने बताया था कि अपने अपने घरों में आपको रहना है, बट अगर किसी भी जीवन जरूरत की चीज अगर आप लेने जाते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। फाइन, वो बताया था मोदी ने कि जाना पड़ता है। तो अगर पुलिस वगैरह खड़े हैं तो डेफिनेटली वो आपकी पूछताछ करते हैं पहले, किस काम के लिए बाहर निकले हो, क्यों निकले हो। आप बोलते हो सर मुझे मिल्क लेने जाना है, तो डेफिनेटली ही और शी अलाउस यू, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से, एक बाउंड्री है आपके फ्लैट के आसपास और आपकी सोसाइटी के आसपास, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। या बट अगर आप परमिशन लेते हो, कुछ जरूरी काम है, इमरजेंसी है, डेफिनेटली यू कैन गो, राइट? तो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये पुलिस जैसा ही है। फाइन, वो पहले देखते हैं क्या जरूरी है, नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। फाइन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट सिलेक्टिवली अलाउस। यहां जो फंक्शन लिखा है दैट इज ओनली अलाउस, बट लास्ट में देखो सिलेक्टिव वर्ड यूज किया है। इट मीन्स व्हाट? इट सिलेक्टिवली अलाउस और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जस्ट आपको ये लाइन के पहले सिलेक्टिव वर्ड लिखना है। फाइन, लेट वी से द डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस से नाउ दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। Look at that, this is a protein molecules. ये जो चेन जैसे राउंड राउंड दिख रहा है दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। और इफ आई टॉक अबाउट दिस लेयर दैट इज नथिंग बट द लेयर इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड लेयर, राइट? फॉस्फोलिपिड, the special type of lipid I say phospholipid. You will study in higher standard phospholipid, it is one of the type of lipid और वो दो लेयर है आप देख सकते हो। So it is basically lipid bilayer, दो लेयर है इसलिए। Fine, now you see it is again one more diagrammatic view. So look at that, this is the first layer and this is a second layer। और ये मेम्ब्रेन है, ये बाउंड्री है, उसमें से मटेरियल्स बाहर भी आ सकते हैं, यू सी लिपिड बाइलेयर लिखा है ना, डिफ्यूजन थ्रू। डिफ्यूजन क्या है अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइन, और ये मटेरियल बाहर आ रहा है, राइट? तो बिल्कुल यहाँ से मटेरियल अंदर भी तो जा सकते हैं, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से,
if I talk about plasma membrane, where it is from which material it is made up of? So of course it is made up of lipid and protein. It is made up of lipid and protein. Fine, चलो come to the point. Okay, now ये बात हुई, एक बात की मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. अब बात ये है कि which type of substance are we talking about? So that plasma membrane can permit, plasma membrane can allow the entry and exit of those substances. तो दो definition यहाँ पे याद रखनी है dear students. Number one is we have to talk about diffusion. Diffusion शायद standard 6, 7, 8 में आप लोग पढ़ के आए हो, I don't know, but let me clarify. Diffusion एक ऐसी process है कि look at that. This is the definition of diffusion. Movement of substance from a region of high concentration to region where its concentration is low. Movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. For an example, ये डिफ्यूजन समझने के लिए मान लो एक कमरे में 100-200 लोगों को पैक कर दिया गया है. एक कमरे में 100-200 आदमी को. अब वो कमरा खुल भी नहीं सकता है, इतने लोग खींच-खाच में बैठे हुए हैं. अब अगर गलती से किसी ने, यानी कि क्या है, 200 आदमी एक कमरे में है तो वो कंसंट्रेटेड है, ज्यादा है, राइट. अब बाहर कोई भी आदमी नहीं है रूम के बाहर, तो अगर किसी ने दरवाजा खोला तो क्या होगा? यू नो वेरी वेल कि सारे आदमी रूम से बाहर चले आएंगे, क्योंकि बाहर कोई भी तो नहीं है और अंदर इतनी खींचोखींच है. तो व्हाट इट मीन्स कि बाहर कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द पर्सन्स आर मोर, सो डेफिनेटली अ पर्सन हैज टू कम आउट. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? डोर. तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो. फाइन. नाउ सेल के बारे में बात करते हैं. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया और देयर इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर माय डियर स्टूडेंट्स, कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज गोना बी वेरी वेरी लो. सभी जगह ये रूल एप्लीकेबल है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. चलो सेल की नजरिए से ये चीज लर्न करें. तो सेल में क्या है कि सेल को काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और सेल जो काम करते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है वेस्ट मटेरियल के हिसाब से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब देखो, सपोज सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गया है, यानी कि सेल ने बहुत काम किया. नाउ देयर इज अ मोर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल. बाहर कंसंट्रेशन लो है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो क्या होगा? So there is a difference between concentration of CO2 inside and outside the cell. कहाँ कंसेंट्रेशन CO2 का ज्यादा है? अभी मैंने बताया, सेल के अंदर. तो क्या होगा? सेल CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू विच प्रोसेस? ऑफ कोर्स डिफ्यूजन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज वेरी लो, एंड दैट इज अ एक्सटर्नल एनवायरमेंट आउटसाइड द सेल. और सिमिलरली सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है क्योंकि CO2 ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है. तो क्या होगा? बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स अब बाहर से अंदर आने लगेंगे और CO2 मोलिक्यूल्स अंदर से बाहर जाने लगेंगे. सो इट इज अ बायलेटरल प्रोसेस. जैसे ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 चला जाता है बाहर, सेल के बाहर. बट both the molecules, I mean to say CO2 and O2 has to cross selective permeable membrane. Selective permeable membrane के बारे में हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके. So now you will be very clear. सेल देखते हैं, अलाउ करते हैं O2 को अंदर की ओर और CO2 को बाहर धकेल देते हैं. ये काम नहीं, किसका काम है ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है. कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है? ऑफ कोर्स डिफ्यूजन प्रोसेस इज गेटिंग इन्वॉल्व. Fine. So that is the first example. Similarly, सेल को अकेले गैसेस चाहिए ऐसा तो नहीं है, सेल को काम करने के लिए पानी भी तो चाहिए. तो अगेन वाटर obeys the law of diffusion, same. But
but movement of water molecules through selective permeable membrane थ्रू वाटर मोलिक्यूल्स बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, फाइन। तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, सिमिलर टर्म, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। रिमेंबर वन थिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात की तो दैट वाज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। और अब वही टर्म अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में सेम कंसेप्ट कि सेल में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स बाहर से पानी सेल के अंदर आएंगे। सेल में पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, सेल में से पानी बाहर चले जाएंगे, फाइन, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे। बट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। चलो ये समझना थोड़ा जरूरी है, फाइन। 3 टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अनदर इज आइसोटोनिक, एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई रिपीट अगेन ऑल द 3 वर्ड्स, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। चलो सबसे इजी वर्ड से पहले शुरुआत करते हैं, आइसोटोनिक। आइसो मीन्स व्हाट, सेम। आइसो मीन्स व्हाट, सेम, यानी कि सेल में केवल पानी है ऐसा तो नहीं है, बट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट उसमें कई सारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स भी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो सारे सॉल्ट्स भी है, केवल पानी नहीं है। तो what I mean to say, that is called as a not simple water but solution। उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सॉल्यूशन। सेल के अंदर केवल पानी नहीं है, पानी में सॉल्ट डिसॉल्व किए हुए हैं। ओके, अब जितनी क्वांटिटी में हमने वो सॉल्ट डिसॉल्व किए हैं, हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में लर्न करने वाले हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन, राइट। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन वेयर सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। तो सेल में जो वाटर है उसमें सॉलिड डिसॉल्व है, तो डेफिनेटली वो हम सॉल्यूशन उनको बोलेंगे। और वो सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, बात खत्म। कंसंट्रेशन इंडिकेट्स अमाउंट। और आइसोटोनिक मीन्स व्हाट, सेल के अंदर जो वाटर का सॉल्यूशन है सेल के अंदर, फाइन, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें भी तो सॉल्ट डिसॉल्व किए हुए हैं, फाइन। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इट मीन्स व्हाट, आई मीन टू से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यू कैन से सॉल्यूशन, बात तो एक ही है भाई, फाइन। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इट मीन्स व्हाट, दैट सॉल्यूशन इज called as a iso means same. So if the medium means external medium I am talking about, has exactly the same water concentration as that of the cell, as the cell के अंदर भी सेम है, सेल के बाहर भी सेम है, so there will not be any net movement। सेम है भाई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगे, किसी को अंदर आने देंगे, बट सेम इन द केस के कुछ बाहर चले जाएंगे ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएंगे। सो नो नेट मूवमेंट होगी, बट नेट मूवमेंट इज 0। 2 मोलिक्यूल्स अंदर गए, 2 मोलिक्यूल्स बाहर आ गए, लाइक दैट, राइट। सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट अमाउंट इज गोइंग इन इज द सेम एज दैट अमाउंट गोइंग आउट, एंड हेंस what you can say, cell will stay the same size। तो सेल में कोई फर्क नहीं आने वाला है। सेल की साइज कैसी रहती है, पहले जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही साइज रहेंगे, सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, फाइन, ओके। तो ये एक बात है आइसोटोनिक। अब हम 2 चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वन इज हाइपोटोनिक, अनदर इज हाइपरटोनिक। चलो शुरुआत करते हैं पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन भला क्या है, और हम अपने सेल को पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, कोई चेंजेस नहीं आई। अब किस में रखने जा रहे हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने जा रहे हैं। किस में रखने जा रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, चलो देखते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन
द सेल. इट मीन्स यू सी वाटर कंसेंट्रेशन लिखा है, डोंट कंफ्यूज, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड नहीं है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है. इट मीन्स बाहर जो पानी है, बाहर जो मीडियम है, मीन्स हम जिसमें सेल रखने जा रहे हैं उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा है? वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, नहीं कि वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. फाइन. तो क्या होगा? डेफिनेटली सेल के अंदर पानी कम है और सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो, दैट वी ऑल नो वेरी वेल. बट यहाँ वाटर है तो उसे हम डिफ्यूजन नहीं क्या बोलने वाले हैं? ऑस्मोसिस. क्या बोलने वाले हैं? ऑस्मोसिस. तो सेल है, सेल में पानी के मॉलिक्यूल कम है, आप जिस सॉल्यूशन में रखने जा रहा हो वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है. हाइपोटोनिक मीन्स व्हाट? हाइपोटोनिक मीन्स व्हाट? पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है. तो ऑफ कोर्स जो सेल रखते हो आप वो सॉल्यूशन में, तो सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर से आने लगेंगे. तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? सेल की साइज बढ़ जाएगी. क्या होगा? सेल की साइज बढ़. इट मीन्स सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. ये पूछते हैं एग्जाम में, व्हेन यू पुट द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन. तो हाइपोटोनिक में रखते हो तो सेल इज गेटिंग स्वेल्ड. सेल के साइज से बड़े हो जाएंगे क्योंकि उसमें पानी बाहर से चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाहर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा थे. एक्जैक्टली द अपोजिट सिचुएशन इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इफ द मीडियम हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि बाहर क्या है? पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो सेल में से पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे. फाइन. सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे. तो क्या होगा? सेल में से पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो सेल की साइज कैसी हो जाएगी? बहुत छोटी. कैसे हो जाएगी? बहुत छोटी, बहुत छोटी. बिल्कुल. तो सेल इज गेटिंग श्रिंक. सेल विल श्रिंक. सेल बिल्कुल से ऐसे हो जाएंगे, बहुत कम. चलो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड. ये जो सेल मैंने ड्रॉ किया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये सेल है, सेल के अंदर वाटर है, राइट. और अभी जो लास्ट कंसेप्ट डिस्कस किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सेल में पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है. बाहर कैसा है? पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, राइट. वाटर कंसेंट्रेशन इज लो, सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल में से पानी बाहर चले जाएंगे, सेल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे. एंड यू सी नाउ द साइज ऑफ शेप इज वेरी स्मॉल. सेल इज गेटिंग श्रिंक. और एग्जैक्टली जो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, बाहर ज्यादा है, सेल के आसपास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो मीडियम है जिसमें हमने सेल को रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आई मीन टू से, तो डेफिनेटली पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे, और पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे तो सेल के शेप बढ़ जाएंगे. सेल इज गेटिंग स्वेल्ड. ओके. तो तीन चीज याद रखो. आइसोटोनिक में सेल जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, आइसोटोनिक में कोई डिफरेंस नहीं है. हाइपोटोनिक, अगेन आई से हाइपोटोनिक, हाइपो फर्स्ट केसेस हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक में क्या होगा? सेल इज गेटिंग स्वेल्ड. तो ये लिख ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन. स्वेल. और यहाँ हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेल विल श्रिंक. तो एक टेबल ही बना दो. आइसोटोनिक सेल शेप, हाइपरटोनिक सेल विल श्रिंक, एंड हाइपोटोनिक सेल विल स्वेल, राइट. बट दिस ऑल थिंग्स टू बी डन बाय द सेल, आई मीन टू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और दो ही प्रोसेस इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन का ही अगर वाटर में इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. फाइन. ओके. नाउ ये जो शॉर्ट नोट में ये सब चीजें लिखनी है, पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है भाई होमवर्क में. ओके. तो जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स भी आते हैं जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी आते हैं जाते हैं, राइट. तो ये चीज सारे सेल्स में एप्लीकेबल है, सारे सेल्स में एप्लीकेबल है. इट मीन्स व्हाट? यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस.
प्लांट के सेल हो, एनिमल के सेल हो, कोई भी सेल हो, दो ही प्रोसेस काम करती है भाई, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, राइट। एग्जाम्पल में फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार पूछा था स्कूल में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस, तो दैट इज वाटर है तो ऑस्मोसिस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो डेफिनेटली डिफ्यूजन। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है, राइट, एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, वो डायग्राम्स भी आपको दिखाई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, दो चीज से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। और वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये वही इमेज है, ऐसा दिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आज यहां तक रखते हैं, फाइन। दो और भी चीज है, चलो एक छोटी सी डेफिनेशन है, ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप स्ट्रेच कर सकते हो, इट इज क्वाइट बिट फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कुछ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड। एनगल्फ फूड यानी कि वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को इस तरह से मोल्ड करते हैं, आई विल शो यू दी वीडियो राइट नाउ, एनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से वो मटेरियल खींच लेते हैं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट बिट फ्लेक्सिबल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल, साइटोसिस सेल के अंदर वो चीज ले सकते हैं, फाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी शो दिस प्रोसेस। अमीबा जो है वो मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, जस्ट वेट। फाइन, जैसे अमीबा बाहर से फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो एक व्हाट यू कैन से उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से वो शेप देते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। स्यूडोपोडिया यू विल स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, बट अगेन ये चीज आई तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ तक आज रखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी शॉर्ट नोट, जितना मैंने इस पीडीएफ में जो येलो पार्ट किया है वो सब लिखना है, बट किस तरह से फ्रेम करनी है शॉर्ट नोट, लेट मी रिवाइज अ वेरी क्विक वे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, उसके बाद उनको डिफाइन करो, यानी कि ये पूरी प्रोसेस, उसके बाद ये जो चीज है वो सब आपको लिखनी है, फाइन, O2 CO2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑल दैट पार्ट, ओके। फिर ये तीनों केस, दो केस मैंने बताया है, लेकिन आपको तीसरा केस भी लिखना है होमवर्क में, राइट। और ये जो पैराग्राफ है वो ये पैराग्राफ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये आप सबसे पहले लिख देना डेफिनेशन के बाद, ताकि एक सिस्टमेटिक वे से शॉर्ट नोट बने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किसका बने होते हैं, वो एक्चुअली लास्ट में दिया है तो आपको वो पहले लिखना है, उसके बाद उनके फंक्शंस लिखने हैं, ओके, फाइन। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द सेल वॉल एंड अदर ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ओके। थैंक यू।